Sure. Sure. I think I think mental health is mental something that health has is always something been that has ignored, always been ignored, and and like the number of like the hospitals number of or the clinics hospitals that are or the there clinics everywhere, that are there but there is everywhere, no space for but there mind. is no space for mind. And Definitely. our And mind is always our full mind of is thoughts, always full but of we are not thoughts, mindful. but we are not So mindful. that's an agony So that's an that agony that living with mindfulness living with makes life mindfulness so makes life easy and so beautiful, easy and beautiful, and that is what we all need and to that is learn. what we all need to learn. Because what happens is Because what happens everything is that goes on everything around that us, goes on around us, we tend to blame that we tend only, to and blame we that don't work only, on and ourselves. we don't work So on today ourselves. So it's a today, time when we need it's to the meet time when we ourselves need to first, meet ourselves first, and I think this lockdown and I is think this giving lockdown us is that giving us that opportunity. opportunity. Yes. So I will say few So I will lines say about it. few lines about it. Okay. तो जिंदगी गुजर तो गई जिंदगी गुजर गई बिखरने में, बिखरने में, जिंदगी गुजर गई जिंदगी बिखरने गुजर में, गई बिखरने आओ में, आज खुद को आओ सवार आज कर खुद को देखें, सवार कर देखें, कोई आता है या कोई नहीं आता आता, है या नहीं आता, आओ आज खुद को आओ पुकार कर आज खुद देखें, को पुकार कर देखें, आओ आज खुद को आओ पुकार कर आज देखें. खुद को पुकार कर देखें. Wow. But actually we want to know first the main thing is जैसे physical health अगर हमारी ठीक नहीं होती है तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में कि हमें फीवर हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, या कुछ समटाइम्स आवर बॉडी स्टार्ट शोइंग सम साइंस. बट नाउ with the mental health we want to know what are the early signs or symptoms our body would, are there any signs and symptoms that we should know that our mental health is not good. For example, हमें नींद नहीं आ रही है, is that also a sign? Because that happens with most of us. नींद नहीं आ रही है, बहुत अजीब फील होता है, लो फील होता है. Are these the sign or there are some other signs? So primarily my question is, what are the early signs and symptoms to know whether your mental health is good or not good? Your question is very relevant, Dr. Sudipti. Actually, what happens is this is also a very subjective thing. I mean, most of the times it would be same, but in some people it would affect their endocrine glands and it won't show up in their either thinking or mood or behavior, which are the three aspects which are affected badly by any changes in mental health. But for some people, it would manifest in some sort of disease, say 10 years, 20 years down the lane. We think that, okay, everything is fine, but why have I suddenly got, this kind of migraine or this kind of diabetes? So sometimes it is extremely deep, and that is where it just manifests on body as a disease. But in today's times, you also need to understand that if it is not appearing like this, then maybe loss of concentration and of course sleep issues, then sudden want to just stay alone and not getting connected with the social circle, and feeling very irritable, not able to focus and concentrate on anything, and having short temperedness. So these are some of the things which may indicate that there is something which is troubling the subconscious mind and which needs to be resolved. And I would like to say that knowing oneself is extremely important when we talk about mental health, because Lord Buddha said, and also one of the very great philosophers said, that unless you know yourself, the life will not be worth living. Or Buddha said that then life will just be something that's full of sorrow if you don't know yourself. So whenever we talk about mental health, it's very important that we stay connected with ourselves and understand what my traits are, what my strengths are, and we always talk about it. But it feels really difficult and how to connect with ourselves, and generally it is very intangible sort of activity. So we tend to just look around and find pleasure and happiness in the things around. So yeah, so as you said that the signs and symptoms are changes in mood, thinking and behavior, and in some cases it is purely on the endocrine glands and the vital organs. Okay, great ma'am. So actually sometimes we tend to feel those emotions and maybe we ignore them. हमें लग रहा है कि जैसे for example persistently headache हो रहा है. So sometimes we ignore. That's I think the main sign that our body or our brain is giving to us, but sometimes we just ignore. So I think if a person feel any of these symptoms that you just now explained, one should not ignore these symptoms and one should actually seek help immediately. Or if your family or friends is trying to convey you these signs and symptoms about the mental health, one should not ignore them. One should actually seek help. And just like we talk openly about physical health, mental health should not be stigmatized and should not be a part of taboo. And people say, no, तुझे depression नहीं हो सकता. It is something seen as like looked down.
which is not good Yes. because the whole body and mind is one entity, which is where mind is ignored. जबकि अगर हम देखें कि पहले के समय में अगर हम बात करें लाइफ के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं कि तन, मन और धन, तो आज के समय में सबसे ऊपर चला गया है धन, फिर हम ठीक है चलो Right. जिमिंग कर लिया, खा लिया, और मन सबसे पीछे. लेकिन अगर मन सही नहीं है, जैसे कि हमने अभी जो रिसेंट न्यूज आई है सुशांत सिंह की और भी हमेशा, तो अगर मन सही है तो तन भी अच्छा रहेगा और धन फिर हम अपने आप कमा लेंगे. तो इट शुड बी इन दैट प्रायोरिटी ऑर्डर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी Definitely. सेट द प्रायोरिटी राइट इन लाइफ. डेफिनेटली, ये तो बहुत ही आपने अच्छी बात बोली है मैम. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिप्रेशन जैसे हम सुनते हैं, डिप्रेशन तो सबसे ज्यादा आई थिंक स्टिग्मेटाइज्ड है कि हम मतलब कई बार हम मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे उसको तो डिप्रेशन है, तो हम सोचते हैं डिप्रेशन मतलब. इनफैक्ट आजकल इवन द डेटा सेज दैट टीनेजर्स एंड एडोलेसेंस एज में भी people are facing this problem of depression. So sometimes they make fun, sometimes they ignore these things, and that ultimately leads to, you know, the data, WHO side data is also gave that one in every 40 second one person in every 40 second commits suicide. So this is something which should not be ignored, and we should actually, you know, think upon these things. वेरी ग्रेट इनसाइट्स मैम. Absolutely. ऑल्सो मैम एक चीज और है कि लाइक अगर हम कोई 3 और 4 ईयर के किड को देखते हैं, टिल 5 ईयर और मे बी टिल 6 ईयर किड, he always seems to be very happy, very calm in his life. But as he grows, as a kid grows, या जैसे बड़े होते हैं हम, there are so many problems, there are so many pressures आ जाते हैं in school, in college, then as we grow. So sometimes all this is like a little too much. ऐसा लगता है कि हमारी ही प्लेट में बहुत ज्यादा है. So what do you suggest about how to handle this all kind of pressure? I would like share my view on this. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक कैक्टस में, एक पॉक्यूपाइन में और एक गुलाब के पौधे में क्या सिमिलैरिटी है? I think thorns. Yeah. And okay, if I ask कि इन तीनों में और एक मंकी में, इन चारों में क्या सिमिलैरिटी है? Monkey. I Okay, think blue they whale. all are Okay, living things. any animal of Okay, your so they choice, all have life. They all have life. right? Okay, some more insights or answers. People may also write them here in the chat Yes. box. So guys, please help us and tell us what is the similarity. मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, even you can answer this question. So ma'am, can you repeat the question for our audience? What's the similarity between a porcupine, a rose plant, a blue whale, a monkey, and a cactus? So guys, please answer. And that is whosoever will not there. That is not there in human beings. Okay, that's not there in human beings. Okay. Yeah, but it's common in all of them. Human beings can, you know, feel the emotions, but I don't know about monkeys. I think they can also feel the emotions. Okay, I would answer because we have time constraint. So next time we can make it more interactive. So here the thing is, they all accept themselves as they are made by nature, but we don't. Okay. And just imagine if there is a garden where there are 15 types of plants and flowers, and all of them are trying to become like, a rose says, no, I want to become jasmine. Jasmine says, I want to become lotus. Sunflower says, I want to become, lily. So there will be a constant fight. So they won't be able to become what they are blessed with, and they will not be able to become, there is something, something else. So that is what happens with us. What happens, जैसे आपने छोटे बच्चे की बात बोली, क्यों वो होता है? क्योंकि वो 5 साल तक वो गुलाब है, वो एक ये मंकी है. मतलब आई वुड से जिसको इस नेचुरल फॉर्म में वो खुद को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ. हम बड़े होते ही हमारी नजर खुद से हटके बाहर चली जाती है. और हम सबके कांस्टेंट स्ट्रगल और डिप्रेशन का यही रीजन है कि हम खुद को यूनिक एक्सेप्ट नहीं करते. एक घास है, घास शायद कुछ सेंटीमीटर्स की है, उसके सामने एक नारियल का पेड़ होगा, लेकिन कभी वो ये नहीं कहती कि मैं छोटी हूँ. उसमें जो गुण है वो नारियल के पेड़ में नहीं है. जब हवा आएगी तो घास को डरने की जरूरत नहीं है. तो उनकी जो क्वालिटीज है वो उनको फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी डोंट डू दैट. तो जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर ये होता है कि हम कुछ और बनना चाहते हैं. हर कोई कुछ और बनना चाहता है. तो जो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है वो बनेगा नहीं, और कुछ और भी नहीं बन पाएगा. तो जैसे एक सीड है, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर हम सीड को एनालाइज करने लग जाए, अगर हम उसको डाइसेक्ट करें आपकी क्लिनिकल लैब में, वी वोंट फाइंड द फ्लावर्स, बट इट नीड्स दैट टाइम.
वो टाइम की जो प्रोसेस है उसमें जाके उस सीड में से फ्लावर्स निकलेंगे, उसको एनालाइज करने से नहीं निकलेंगे। तो वी नीड टू गिव टाइम टू आवरसेल्व्स टू ब्लूम फुल्ली एंड नॉट एक्सपेक्ट कि हम किसी और जैसे बन जाएं। और जिंदगी का यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट बना है ह्यूमन सोसाइटी में, वहां हम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करें। मतलब हम ये सोचते हैं कि आज का दिन तो परफेक्ट नहीं है खुश होने के लिए, मैं खुश होने को एक अच्छी ड्रेस की तरह संभाल के रखता हूँ या रखती हूँ कि नहीं, मैं उस दिन खुश होऊंगा जब मेरी लाइफ में ये सब चीजें ऐसे फॉर्मेट में होंगी जैसा मैं सोचता हूँ। राइट राइट राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मैम कि आपने सेल्फ लव की बात की है। हम लोग शायद सब इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करें, वो हमें वैलिडेट करें, और हम खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, खुद को पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। एंड द मोस्ट प्रॉब्लम अराइजेस जब हम दूसरों को कंपेयर, अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं। I think बिल्कुल। that's the wonderful example of plants, and we should actually learn from everything around us except humans. You're truly right कि हम लोग एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों की से कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं अपने आप को, और सेल्फ लव तो शायद हम भूल चुके हैं, सेल्फ एप्रिसिएशन तो हम भूल चुके हैं। तो मैम आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज वैलिडेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इज एप्रिसिएशन? हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई लोग और हमें अप्रिशिएट करे, कोई और हमें वैलिडेट करे? इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज में भी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करे तो ही हमें अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बनाते भी हैं तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे हमने क्या बनाया है, या हमने कुछ काम किया ऑफिस में। सो व्हाई इज इट दैट, एंड व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट? I would say that this is natural human instinct to feel good when they get appreciation. So what happens is, okay, on one hand, it is natural and it is okay to expect appreciation sometimes, but I think that is not the great way or the ideal way. So what happens is getting a pleasure from something which is very quick, कि ये बना दिया, किसी ने तारीफ कर दी, हमें instant gratification के लिए हमें खुशी मिल गई। लेकिन खुद पे काम करके अपनी क्वालिटीज बढ़ा के जो इनर पीस ऑब्टेन करनी होती है वो एक लॉन्ग रूट है। तो हमेशा हम उस लॉन्ग रूट पे जाने से बचते हैं। तो अगर जैसे हम प्रेशर की भी बात करते हैं कि लाइफ में इतना प्रेशर, उसको कैसे हैंडल करें, तो उसका रीजन यही है कि हम लॉन्ग रूट पे नहीं जाना चाहते। हम खुद से अगर मेहनत करें, हम छोटी छोटी चीजें, जैसे क्रिएटिविटी है जिसमें यू टेंड टू लिव इन द मोमेंट। हम हमेशा क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट एक ऐसा है कि एक ट्रेन निकल चुकी स्टेशन से, हम उस पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सीडेंट होगा। कोई ट्रेन आई नहीं है, हम उसके पहले ही, वो पहुंची नहीं, उसके पहले हम सामने कूद रहे, तो भी एक्सीडेंट होगा। आप उसी बोगी में चढ़ सकते हैं जो एग्जैक्टली आपकी नजर के सामने है। वैसे ही प्रेजेंट है। तो जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते और तो हम ब्लिसफुल फील नहीं करते, और जब हम ब्लिसफुल फील नहीं करते तो हमको इस ब्लिस के लिए एक्सटर्नल चीजों की डिपेंडेंस हो जाती है। एंड दैट इज वेयर वी एक्सपेक्ट कि हर चीज हमें कोई और बताए, हमारी तारीफ करे, तभी हमको लगता है कि हमारी कुछ वर्थ है। और सही बताऊं तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं एक्सपेक्टेशंस के हार्म बहुत ही ग्रेव हो सकते हैं। एंड जब हम अच्छा करते हैं तो जो आए हमारे सामने, और मैं सही बताऊं तो अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाए और उसको बहुत तारीफ मिले, तो जब उसको नहीं मिलती है तो वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए हमको, मैं तो कहूंगी, इवन जब हमें बहुत तारीफ मिल रही है उस टाइम भी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए कि ओके, दिस मे चेंज एंड दिस विल चेंज एनी डे एनी टाइम, एज लॉन्ग एज मैं इनके पसंद का काम कर रहा हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने अपना स्टैंड लिया जो इनके अगेंस्ट हुआ, तो ये आज जो मेरी इतनी तारीफ कर रही है मेरे क्रिटिक्स बन जाएंगे। तो मैं बताऊँ, एक स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, स्वस्थित, मतलब हम जब खुद में स्थित होते हैं हर चीज के लिए, तभी हम एक्चुअली हेल्दी होते हैं। इट इज नॉट जस्ट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो इसीलिए ये जो चीज है कि हमें वैलिडेशन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एंड जो सोशल मीडिया का टाइम है, हमेशा हमें लाइक्स चाहिए, हमेशा हमें, और इस वजह से हमको लगता है कि पूरी दुनिया हमें लाइक कर रही है, तो समवेयर वो चीज जब रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो देन पीपल फील डिप्रेस्ड। जैसे कि अरे तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो, मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, घर में तो मेरी बात नहीं सुनते हो, तो वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। मैम एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। Somebody has asked that what can be the reason of depression? Are we lacking in keeping ourselves happy? I can see that question. Okay. What about the expectations? वो पहले था। So are we lacking in keeping ourselves happy? क्या ये रीजन है डिप्रेशन का? डिप्रेशन का रीजन ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने का कोई एफर्ट नहीं लेते हैं। हम हमेशा, जैसे मैंने बोला, हम बाहर ही देखते हैं और हमारे अंदर जो ब्लिसफुलनेस है, उसका जो सोर्स है, उसको हम कभी टैप नहीं करते। जैसे हम अगर बात करें कि लाइफ का
मोटिव क्या है। अगर हम उसके बिना जिएंगे क्लैरिटी की, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉटल जिसका ढक्कन नहीं लगा है, तो हम उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो क्रश हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ भरा है तो आप उसको कितना भी प्रेशराइज करो वो क्रश नहीं होगी। देयर इज अ कोर टू इट। सो दैट एग्जैक्टली इन द सेम वे वी शुड हैव अ कोर टू इट कि लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, और मैं खुद से कनेक्ट कितना हो सकता हूँ। जितना आप खुद से कनेक्ट होंगे उतनी आपका डिप्रेशन, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ कम होता जाएगा। तो देयर इज ओनली वन रीजन टू दिस। कितना भी टफ टाइम हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी कैलामिटी आ जाए, बट इफ यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड टू द रियल गोल ऑफ लाइफ विच इज सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड सेवा, देन यू वोंट फील डिप्रेस्ड। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। ओके, सो अल्टीमेटली कि आंसर ऑफ मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना एंड डिप्रेशन से दूर रहना इज दैट यू हैव टू सेल्फ लव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखो। बट देन देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी, that what about the expectations that the family and society have from us? That's true, and that is a very big matter of concern, because most of the times people are often lost in this thing कि उसको मुझसे ये चाहिए, उसको मुझसे ये चाहिए, तो पूरे दिन बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में हम खुद को ही भूल जाते हैं। और होता यही है कि उसमें आपको अपनी एक बाउंड्री और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का एक प्लान बनाना होगा कि मुझे खुद की बाउंड्रीज, जहाँ पे मेरा मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं होता है, वहां तक आई कैन डू एंड आई शुड डू। लेकिन इसके साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर टाइम खुद को चेंज करने का, खुद को इम्प्रूव करने का एफर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर हम वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम डिप्रेस भी ज्यादा होंगे और उन लोगों को भी हमसे जो कंप्लेंट्स है वो हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम खुद में लेवल पूरा लगा रहे हैं, हम खुद को स्ट्राइव कर रहे हैं, उसके बाद में नाउ वी नो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद वो जो कर रहे हैं तो देन दैट इज देयर प्रॉब्लम। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना बेस्ट जरूर दें एक बार के लिए, और हम ये देखें कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए भी अच्छी हैं, कि अगर वो जो चाहते हैं वो मैं करती हूँ खुद के साथ, तो विल दैट एनरिच माई लाइफ, विल दैट एनरिच द लेवल ऑफ माई मेच्योरिटी, विल दैट मेक मी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन एन मोर इवॉल्व मैनर। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी जो आपकी जिंदगी के लिए अच्छी है, तब तो हमें उन पर काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर अनरियलिस्टिक है, हमारे लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, हमें हमें अपने प्रोटेक्शन जोन से दूर ले जा रही है, तो डेफिनेटली यू शुड लर्न टू से नो टू देम। सो डेफिनेटली इसमें भी अगेन वही बात है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब इसमें बिल्कुल। जो हम अल्टीमेटली हम ये बोलना चाहते हैं कि हम पहले खुद को समझे, खुद को जाने, हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमें लाइफ में क्या करना है, उसके बाद हम दूसरों से देखें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो हमारी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन से मैच कर रही हैं तो हम उन पर काम करें। तो भी हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम करें कि हमें बस अपने लिए काम करना है, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए काम करना है। और अगर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं तो जैसा कि आपने बोला कि हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनके एक्सपेक्टेशन में हमारा जो कोई नेचुरल टैलेंट है या कोई हमारी नेचुरल कॉलिंग फॉर लाइफ है, उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद जो वो करने से हम एक्चुअली खुद के बिगेस्ट सोर्स ऑफ सुप्रीम हैप्पीनेस से कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन हम इन एक्सपेक्टेशंस में ये भूले ही जा रहे हैं कि मैं अपनी उस अनहर्ड वॉइस को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबके बीच में अपनी उस वॉइस को थोड़ा थोड़ा सा सुने और उसको ब्लॉसम होने का टाइम दें। That's a really a wonderful insight, because even I have read that it's not selfish to love yourself and to take care of yourself or to make your happiness a priority. In fact, Exactly. it's the only Totally necessity. It's the because only there is no one necessity else to who love. can do that for you. वो और कोई नहीं कर सकता जितना हम खुद को समझ सकते हैं। हाँ, बोलिए ना। Yes. So मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा कि हाउ टू एग्जैक्टली डू दैट, हाउ टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, हाउ टू गो इनटू दैट स्टेट कि हम खुद को सबसे पहले लें, खुद को प्रायोरिटाइज करें, खुद को सेल्फ लव करें। एंड इट शुड बी इन दैट बैलेंस ऑल्सो कि वो सेल्फ सेंटर्ड से डिफरेंट हो। मतलब हम कई बार इतना ज्यादा भी ना कर लें कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं। सो देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। सो हाउ टू रेट्रोस्पेक्ट ourselves, how to go into that deep level of thinking? हाँ, थिंकिंग से ज्यादा मैं कहूंगी थिंकिंग ऐसा है, जैसे कि मैंने शुरू में बात कही कि थिंकिंग मतलब हमारा माइंड इज फुल लेकिन वी आर नॉट माइंडफुल। तो अगर हम बात करें कि खुद के अंदर कैसे जाएं, खुद को कैसे जाने, तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत तरह की टेक्निक्स और बहुत तरह तरह के मेडिटेशन आपको मिलेंगे। लेकिन आई वुड से कि मेडिटेशन में और कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा फर्क है। कॉन्सेंट्रेशन हमारा किसी अच्छी मूवी को हम देख रहे हैं,
हमारी पसंद की किसी चीज को देख रहे हैं, उसको भी देख के हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, बट दैट इज नॉट मेडिटेशन. Meditation is when you use your concentration to clarify, to clear the impurities of your subconscious mind. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम concentration और meditation में डिफरेंस समझें. और मैं मेडिटेशन की बात यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि हम स्कोप में ले पाते हैं या नहीं, बट आई वुड से देयर इज समथिंग विच एवरीबडी ऑफ अस कैन डू. एंड उससे पहले आई वुड अगेन थ्रो अ क्वेश्चन कि आप सबने सुना होगा बॉडी माइंड बैलेंसिंग या बॉडी माइंड ब्रिज. तो बॉडी माइंड ब्रिज जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? According to you, what is it? Body and mind balancing. या फिर body mind bridge? Basically, I bridge. Okay. So basically, if we are aware of our mind, so what our mind is, thinking, and that's how our body is responding according to our mind or not. I think that's body mind balancing. Or maybe Yeah, you are our quite close. audience. If anybody wants to answer this question, it would be great if you could answer ma'am's question, that what is body mind balancing? Okay, so I would say that body mind balancing या body mind जो detox techniques हैं उनके बारे में हम इतना hype होता है कि हम इतना पढ़ते हैं कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन अच्छे खाने को, जैसे मेरा फेवरेट खाना मेरे सामने आया तो मुझे मुंह में पानी आया, सलाइवा आया, या फिर एग्जाम से जस्ट पहले मुझे बटरफ्लाइज इन स्टमक हुआ, या फिर मुझे अजीब सा लग रहा है. ऑल ऑफ दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ बॉडी माइंड ब्रिज या बॉडी माइंड कनेक्शन. तो जो भी हम सोच रहे हैं उसका हमारे बॉडी पे इफेक्ट, और जो भी हमारे बॉडी में चल रहा है उसकी वजह से हमारे माइंड पे इफेक्ट. ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन इसको हम 90% इसमें बॉडी को देखते हैं और माइंड को नहीं देखते हैं, लेकिन इट गोज पैरेलल. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस एक ऐसी चीज है जिसमें जो हमारा सबसे बड़ा न्यूरोनल नेटवर्क है वो ब्रेन के बाद हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है. इसीलिए इंटेस्टाइन्स में जो भी होता है वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ब्रेन में जो भी इफेक्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है. तो दिस इज लाइक आई वुड से कि ये और मेडिकल एक एस्पेक्ट है उसी चीज को समझने का. लेकिन हमारा हर इमोशन, आप देखिए जब हम क्रिएटिव होते हैं, हम अपनी पसंद का कुछ काम कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं या हम कोई पोएम लिख रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं कि जब हम ड्रॉ करते हैं हमारा पूरा ध्यान वहीं पे होता है, हम पूरी तरीके से उस मोमेंट में होते हैं. तो क्रिएटिविटी हेल्प्स यू स्टे इन द मोमेंट. इसी तरह बॉडी माइंड बैलेंसिंग की जब मैं बात करूं तो सबसे पहला टूल है, आप किसी तरह का मेडिटेशन मत करिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं, जस्ट फील कि आपके पैरों के नीचे जो जमीन है उसका जो टच है वो आपको पैरों में कहाँ लग रहा है. जब आप नहा रहे हैं तो पानी की जो बूंद है आपको स्किन पर कहाँ टच कर रही है, वो आपको कहाँ फील हो रही है. जब खाना खा रहे हैं तो आपको कहाँ पे उसका फूड का पार्टिकल फील हो रहा है, जैसे आप चू कर रहे हैं, सलाइवा कैसे मिक्स हो रही है. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसकी बात सुनिए, आप पूरा कान बन जाइए. जब आप खाना खा रहे हैं आप पूरा माउथ बन जाइए. जब आप नहा रहे हैं तो आप पूरा पानी के साथ एक हो जाइए. दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू कनेक्ट टू योर बॉडी एंड माइंड, बिकॉज इससे आपको अपने बॉडी की सभी चीजें थोड़ा जल्दी पता चलेगी. जब हम, आप ये सोचिए, जब हम बेहोश होते हैं, मान लीजिए घर में गैस पे दूध उबल गया है और उसकी स्मेल आ रही है, लेकिन अगर हम बहुत ही इंग्रोस्ड हैं किसी और चीज में तो अच्छा बहुत देर बाद मुझे स्मेल आई बिकॉज मैं होश में ही नहीं थी. ऐसे ही जब हम अपने बॉडी के प्रति बेहोशी में रहते हैं तो बॉडी की अगर कोई साइंस है, फिजिकल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की, कोई भी, वो हमें नहीं सुनाई देंगे बिकॉज हमारा ध्यान ही नहीं है. इसीलिए अपना जो ये सबसे कोर घर है, इसका जो एकदम हमारा कॉम्पैक्ट ये जो पूरा सिस्टम है, इसके साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये हमें जो भी बताने की कोशिश कर रहा है वो हम तुरंत टैप करके उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते. तो आई वुड से कि ये सबसे पहली चीज है कि जो आप जिस टाइम आप जो कर रहे हो उस टाइम और कुछ भी है दुनिया में कि आप भूल जाओ, तभी आप अपने बॉडी और माइंड से इतने अच्छे से जुड़ोगे. और आपको अलग से मेडिटेशन अगर नहीं करने का माने, नहीं करने की जरूरत, तो आप बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप जिस टाइम जो कर रहे हैं बस वही करिए. इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी भी थी. किसी ज़ेन मॉन्क के किसी बहुत अच्छे डिसाइपल से पूछा कि आप मेडिटेट कैसे करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता मेडिटेट, लेकिन जब मैं जो करता हूँ बस वही करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता. एंड दैट वाज द ओनली वे दे लिव. वाओ, दैट्स सो नाइस. बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं मेडिटेट कर पाते हैं. आई नो, बिकॉज some people say they don't have time, or some people say they don't know how to meditate, so how to go into all this spiritual thing. But that's the correct example that you are quoting कि अपने आप को फील करना, अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी अगर आप ध्यान से करें, सोच समझ के करें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन. बिकॉज अभी आजकल हम देखते हैं कि खाना खाते वक्त स्पेशली
या तो टीवी ऑन होता है और या फोन ऑन होता है. विदाउट दैट नोबडी ईट्स फूड ऑल्सो. सो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग टू योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी. एग्जैक्टली और अगर खाने में कोई ऐसी चीज है जो हार्मफुल है, आपने अगर ठीक से उसको च्यू ही नहीं किया और आप कहीं और हो, अगर आपका बॉडी आपको बताना भी चाहता है कि कुछ कंकर है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ गया है, अगर आप उसको निगल गए, कितना हार्म करेगा, क्योंकि बॉडी ने हर लेवल पे सेंसर्स लगाए हैं, स्किन है, आईज हैं, ईयर्स हैं, लेकिन हम उन सेंसर का यूज ही नहीं कर रहे बिकॉज हम माइंडफुल नहीं है, वी आर नॉट अटैच्ड. और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आप ये सोचिए, हम किसी भी टाइम हम ये सोचते हैं माइंड यहाँ है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं ठीक है यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि माइंड हर जगह है, इवन हमारे टो नेल से लेकर हमारे हेड तक. क्योंकि लेकिन हम उस चीज को फील क्यों नहीं करते? जब कहीं दर्द होता है, अरे जैसे आज टो नेल में कुछ चुभ गया, पूरा दिन ध्यान वहीं रहेगा, उस टो नेल में पेन हुआ, मतलब जब तक कहीं कोई डैमेज ना हो जाए या कहीं कुछ इमरजेंसी नहीं है रिपेयर की, तब तक हम उस पार्ट पे ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता. आज सर बड़ा भारी लग रहा है, तो जब सर दर्द है तब सर फील होता है, अदरवाइज हमने कभी सर को फील ही नहीं किया. सर को फील नहीं किया. हमारे बॉडी की एक एक जो चीज है उस पार्ट के साथ में फील करना, मुझे जब मैं चल रहा हूँ, मुझे ब्रीज जो आ रही है वो कैसी लग रही है, मुझे सर्दी कैसी लग रही है, मुझे गर्मी, मुझे टेस्ट कैसा आ रहा है, मुझे कैसी आवाजें आ रही है. तो ये जो बहुत ही डीपली अपने बॉडी से कनेक्ट होने की प्रैक्टिस है, इससे बहुत ही एक अलग लेवल पे आप जाते हो विदाउट डूइंग एनी फॉर्मल मेडिटेशन. Okay, that's very nice. Ma'am, can you give us some quick tips for the youth, for all these students? So they are asking a little questions also. Can we have any questions? So one of this Vaishali, she's asking, is procrastination an outcome of depression? Procrastination can lead to depression for sure, because यही होता है कि जब हम, जैसे एक स्ट्रेस मैनेज करने की सिंपल सी बात है, ठीक है, हम अनड्यू स्ट्रेस जो है, जो दूसरों की वजह से, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज को 11th आवर पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट लीड्स टू लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड अगर वो अक्यूमुलेट होता है तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है. इसीलिए अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना, और मैं बोलूँगी टाइम से ज्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को मैनेज करना. टाइम तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमारा अचानक से मूड खराब हो गया, 2 घंटे का जो स्केड्यूल था वो कहीं और चला गया क्योंकि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया. टाइम तो वैसे के वैसे ही है, तो टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव मूड मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट. आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, वो कहाँ जा रही है. अगर आप एनर्जी और मूड को मैनेज करोगे तो टाइम अपने आप ही आपके साथ होगा. Right. I think there is one more question. How to set priorities between family responsibilities and our voice of soul? I think then he would have something very specific, which I mean he has tried to write in a more generic way, but then sometimes what happens, if you think that family is a different part, अगर आप फैमिली को ध्यान नहीं दोगे या फैमिली को टाइम नहीं दोगे, तो शायद आपकी सोल तब भी परेशान होगी. तो आई थिंक आप इनको अलग ना समझें. जिंदगी जो है एक सभी चीजों का एक कलेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, जब ह्यूमन लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले कुछ प्रोटीन्स, कुछ अमाइनो एसिड्स थे, उनका क्लस्टर हुआ, कुछ एंजाइम्स बने, कुछ सेल्स बनी, फिर सेल्स का एक ग्रुप बना, फिर कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स बने, फिर हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स हैं वैसे छोटे छोटे ये ऑर्गेनिजम्स बने. अब हम पूरा बॉडी अगर ऐसे सोचे, अगर एक रेड ब्लड सोचे कि मैं इस शरीर की सेवा कर रही हूँ, मैं इस की सेवा क्यों करूँ, वो अपने आप को अलग समझे, तो होगा ये कि बॉडी में हर सेल, आप ये समझेंगे, कैंसर सेल्स की अगर हम फिलोसफी की बात करें तो हर एक सेल वो सोचती नहीं मैं अलग हूँ, मैं अपना एक अलग क्लस्टर बनाऊंगी. दैट इज व्हेन अनकंट्रोल्ड डिविजन हैपेंस. अगर एक कैंसर सेल की सोच की हम बात करें और वैसे ही हम सोचें कि नहीं मैं अलग हूँ, तो जैसे ही हम बड़े होते जाते, तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम उससे भागे या फिर हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं. तो स्ट्रेंथ बढ़ाने का सिस्टम क्या है कि जैसे लोग हैं, तो भाई कोई मुसीबत आ रही है गाँव में, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने अपना भागे नहीं, वो उन्होंने अपने को बड़ा कर लिया. तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी की हर सेल सोचे कि नहीं मैं तो अलग अपना अलग घर बनाऊंगी, तो पूरा बॉडी ट्यूमर से भर जाएगा. लेकिन जब वो अपने आप को एक ही समझेंगे, कॉपरेशन के साथ चलेंगे, तो वही चीज कितनी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी. अभी ये जो कोरोना का टाइम है, वो हमको यही बता रहा है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक करने में है, और अगर हम वैसा करते हैं तो शायद हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं. और यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इन चीजों को अलग ना समझें कि फैमिली की जो बात है और सोल की बात है. ये हो सकता है कि मैं आपका जो क्वेश्चन समझना चाह रही हूँ कि मे बी आप कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जो करने के लिए आपको थोड़ा और टाइम चाहिए,
जिसमें आपको लगता है कि फैमिली के डेली ब्रेड एंड बटर में या फिर संभालने में या लोगों को टाइम देने में आप अपनी उस कॉलिंग को एड्रेस नहीं कर पा रहे, इन दैट केस मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने टाइम की रिचनेस को एनहांस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइमली सोते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 to 12 अगर आप सोते हैं तो आपके लगभग 5 से 6 घंटे की क्वालिटी नींद हो जाती है। लेकिन अगर हम सो रहे हैं बहुत लेट तो ज्यादा घंटे देकर भी, तो एक तरीके से हमने अपने लिए उसी टाइम को एक्सपैंड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट को लेकर है। तो इन दैट केस आई वुड से कि आप अपने आप को एनरिच और स्ट्रेंथन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सिंपल टेक्निक्स के साथ। सेकंड, जिस टाइम पे जो काम करने से कम टाइम में और एफिशिएंट होता है वो आप करें, जिससे आप टाइम निकाल सके। कि अगर आप सुबह पढ़ते हैं वर्सेस आप दिन में पढ़ते हैं तो सुबह के 2 घंटे दिन के 4 घंटे से बेटर है। 9 से 12 की जो नींद है वो 12 से 6 की नींद से बेटर है। इस तरीके से आई थिंक कि कुछ कुछ चीजों से आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मैम। मैम कुछ और आप टिप्स, कुछ क्विक टिप्स देना चाहेंगे फॉर ऑल द ऑडियंस, हाउ टू do this body mind balancing or to increase your mental health or awareness about the mental health? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि खुद को एक्सेप्ट और दूसरों से नथिंग टू एक्सपेक्ट। ये एक्सपेक्ट और दूसरा जो शेयरिंग वाली बात है कि हम आजकल बहुत बोलते हैं कि शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे लोगों की बात, जैसे सब लोग सुशांत सिंह के लिए बोल रहे हैं कि अरे हम उसको कॉल कर लेते, उसने हमसे बात नहीं की। लेकिन इंसान शेयरिंग कब नहीं कर पाता है, जब वो खुद से ही दूर है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है मेरे सर्किल में भी कि जब हम खुद से दूर होते हैं तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो वो किसी शेयर कैसे करेगा। तो इसीलिए हमें अपनी एक्सप्रेशन की जो एबिलिटी है उसको थोड़ा क्रिस्प करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें। चाहे आप घास भी हैं तो भी आप अकेले ही हैं पूरी दुनिया में, कोई और पेड़ पौधा घास जैसा नहीं है। ऐसे ही आप जो है, आप अपने आप में इतने यूनिक हैं। लेकिन जब आपकी नजर अंदर की तरफ जाएगी कि मेरी यूनिक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, मेरी यूनिक सेट ऑफ कॉलिंग क्या है, तब आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आपको उस बात पे भरोसा करना था कि मेरी कॉलिंग, मेरे स्किल्स और मेरी कैपेबिलिटीज का जो ये ट्रियो है, इसकी यूनिकनेस क्या है, और ये यूनिकनेस शायद किसी के पास नहीं होगी और वो रास्ते भी शायद किसी और के लिए नहीं खुलेंगे। अगर आप उन रास्ते पे जाएंगे वो आपका ही वेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसी तरीके से दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। जितनी भी एक्सपेक्टेशन है खुद से करें, लेकिन रियलिस्टिक, कि ठीक है वन स्टेप, एक दिन अगर मुझे कोई नई हॉबी शुरू करनी है या फिर मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है और आप रोज आधा घंटा नहीं निकाल सकते तो आप 10 मिनट निकालिए, लेकिन जस्ट स्टार्ट इट। अगर हम उसको स्टार्ट ही नहीं करते ये सोच के कि मुझे परफेक्ट आयोटा ऑफ टाइम मिले या परफेक्ट डे मिले, परफेक्ट सिचुएशन लोकेशन मिले, उसका वेट ना करें। आपकी जो भी कॉलिंग है आप चाहे उसको 2 मिनट्स पर डे से शुरू कर दें, लेकिन आप उसमें जरूर कंसिस्टेंटली करें। आप चाहे उसको रोज 2 से 5 मिनट तक शुरू करें। तो कंपेयर ना करना, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करना, खुद पर एवरी डे काम करना है, बॉडी पर, माइंड पर। मतलब आप ये सोचिए कि ये बॉडी जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स का क्रिएशन है नेचर का। इसका एक भी इतना सा भी पार्ट आपको कोई $1 मिलियन देगा तो भी आप उसको नहीं देंगे। लेकिन हम एक कार की भी ज्यादा वैल्यू करते हैं कि नहीं कार की सर्विस करानी है या फिर कार में पेट्रोल लगे तो पेट्रोल ही डलवाना है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई बॉडी का जो सुटेबल फूड है, और फूड केवल ये फूड नहीं जो हम ग्रॉसली ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं दिन भर हम कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, एवरीथिंग इज योर आहार। तो ट्रेडिशनल विजडम में आहार के ये सारे डिफरेंट टाइप्स बताए। आप जो सोच रहे हैं, आप जो इंद्रियों से जो अपने आसपास देख रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप हवा ले रहे हैं, ये सारी ही चीजें आहार का पार्ट है। तो मेक श्योर कि आपका जो ये अमेजिंगली $1 मिलियन क्रिएशन है, इसको आप प्रॉपरली हर तरह का फीड जो है प्रॉपर दें। ऐसा नहीं कि जो सामने आए हमने देख लिया। और जब हम हर टाइम यही देखते रहते हैं कि उसने मालदीव्स में हॉलीडे किया, उसका इतना अच्छा स्पाउस है, उसके बच्चों की ये रैंक आई, उसका ये सर्टिफिकेशन, तो हमें खुद की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का जो टाइमिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हम कभी भी ये नहीं देख पाते कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। एंड वी आर ऑलवेज गेटिंग क्रेजी अबाउट लाइक्स एंड फॉलोअर्स। सो ये आप जो है, ये आजकल के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को डिटॉक्स, जैसे हम हर चीज नहीं खा लेते प्लेट में, हम ये देखते हैं कि नहीं ये मुझे पसंद है कि नहीं, लेकिन हम मेहमान के गए, हाँ ठीक है, हो सकता है मेरा पेट भरा भी है तो भी समोसा आया तो खा लिया। बिल्कुल इसी तरह हम सबके स्टेटस देख रहे हैं, जो सामने आया हमने कंज्यूम कर लिया। आपके अंदर वो जा रहा है, इट इज अफेक्टिंग यू ऑल द टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मी टाइम वेयर यू आर नॉट सराउंडेड बाय एनीथिंग एल्स बट मे बी सम क्वालिटी बुक्स,
सम रागास, जैसे कि एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ कई तरह के रागास होते हैं इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक में, जिसमें आपको ये देखना होता है कि आपके पर्सनालिटी को कौन सा राग सूट करता है और वो कौन से टाइम पे चलाया जाता है। तो अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी के लिए, तो आप कोई एक राग पिक कर लीजिए, आप ये देख लीजिए कि दिन का कौन सा पहर, कौन सा टाइम इसको चलाने के लिए सुटेबल है, और उस टाइम पे बस आप इस म्यूजिक के साथ जुड़ जाइए। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग विद मेडिटेशन एंड हैविंग अ प्रॉपर मी टाइम। तो आई वुड से कि प्लीज रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज टॉक्सिक न्यूज ऑल द टाइम फ्रॉम एवरीवेयर विच इज बीइंग डम्प्ड ऑन योर हेड, एंड मेक श्योर कि आपको अपनी लाइफ का जो गोल है आप उससे रिलेवेंट मैटर पढ़ें, एकदम क्वालिटी मैटर पढ़ें, चाहे आप थोड़ा पढ़ें, बट दैट शुड एक्चुअली एनरिच योर लाइफ बाय द एंड ऑफ द डे। और एक और चीज टिप्स के इसमें, जैसे हम सोते हैं, तो जैसे कि हम लाइफ साइंसेस में देखते हैं कि इंक्यूबेशन होता है, या फिर हम जैसे हम कुछ रखते हैं और वो चीज टाइम के साथ में एक लेवल तक पहुंचती है, ऐसे जब हम सोते हैं तो रात भर जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीजों को प्रोसेस कर रहा है, हमारा बॉडी रिवाइव हो रहा है। तो उस टाइम हम यूज करें अपने लाइफ को एक अवन की तरह की, जो मैं रात को डाल रहा हूँ वो सुबह पक के निकलेगा। तो उस टाइम कोई भी कचरा थॉट ना डालें अपने अंदर, वो आपकी स्लीप को, आपकी लाइफ को, आपके डिसीजंस को, आपकी वाइटल ऑर्गन्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन है उस सबको अफेक्ट करता है। इसलिए सोने से पहले आधा एक घंटा अपना जो स्लीप हाइजीन है वो मेंटेन करें, कि मुझे स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, मुझे या तो कुछ पॉजिटिव पढ़ना है या फिर मुझे न्यूट्रल गियर पे सोना है। हमेशा मुझे ऐसे नहीं है कि जैसे कोई मशीन है हमेशा ही अगर वो चलती रहेगी तो बहुत जल्दी वो वेयर एंड टेयर हो जाएगी। ऐसे ही हमें सोने से पहले ये देना कि मेरा बॉडी का भी पूरा रिजुविनेशन हो रहा है रात में, तो मैं अच्छी चीज पढ़ के सोऊं, जिससे कि रात आप एक छोटे से एग्जांपल दूंगी, रात को अगर हमने कोई मूवी देखी, लेट नाइट हम 9 से 12 मूवी देखने गए, आके हम सो गए, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें उस पिक्चर के सीन्स याद आते हैं, राइट? आई थिंक ये सबने ये चीज महसूस की होगी, क्योंकि हम रात भर हमने जो सबसे लास्ट चीज डाली वो रात भर उसमें घूमती रहती है, और उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ की क्वालिटी पे। इसलिए सोने से पहले जो लास्ट थॉट है, जस्ट रिमेम्बर, वो इतना इंपॉर्टेंट है जैसे किसी पैदा हुए बच्चे को दी हुई पहली खुराक, वैसे ही आपके सोने से पहले की आपका जो थॉट है लास्ट, वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत एफर्मेटिव, बहुत लाइक जो भी आपको पसंद है स्पिरिचुअली आपकी लाइफ की क्वालिटी के लिए, वो होना चाहिए। तो कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, आपकी लाइफ का जो रात का जो ये टाइम है उसको प्रॉपरली यूज करना, और सारी जो है एवरीडे अपने आप पर काम करना और खुद से जुड़ना छोटी छोटी चीजों के, कि आप जो भी कर रहे हो उस टाइम आप उसी एक्टिविटी में पूरी तरह एनग्रोस्ड हो। ये तो बस ये कुछ 4-5 टिप्स हैं जो मैं अभी के लिए कहना चाहूंगी। मैम ये बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल टिप्स हैं, दीज आर रियली वेरी गुड, बिकॉज ये जनरली होता है, हम रात में सोचते हैं कि अब हम थक गए, टाइम हो गया, सो जाए, तो हम अपनी बॉडी को तो रेस्ट दे देते हैं, बट फोन ऑन रहता है, और फोन पर हम पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो नहीं सोचते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब और लोगों ने क्या किया, वो लोग क्या करें, और ऐसे ही किसी थॉट के साथ आंखें बंद हो जाती है और नींद आ जाती है, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब हम उठते हैं, एक तो ना हम बहुत अच्छी पीसफुल स्लीप लेके उठे होते हैं, और यही रैंडम थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हमारा एक्चुअली माइंड बिल्कुल भी मतलब सो नहीं पाया है, वो हम इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। मुझे लगता है बॉडी का हम इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो माइंड है, जो आपने बताया, वो हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम ना रेस्ट दे पाते हैं और ना ही एक बॉडी माइंड बैलेंसिंग, जिससे ओवरऑल फिर फिटनेस भी बहुत कम हो जाती है। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए मैम आपने। एंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड तो आप प्लीज पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है मैम कि इन केस ऑफ डिलेमा, जैसे आपने बताया था कि बॉडी और माइंड है, तो इन केस ऑफ डिलेमा शुड वी एग्री टू बॉडी और टू माइंड फॉर एन आइडियल विन विन सिचुएशन? डिलेमा शुड बी, मैं देखती हूँ, मुझे थोड़ा क्लियर आपकी आवाज कट गई। इन केस ऑफ डिलेमा शुड वी एग्री टू बॉडी, ओके, इन केस ऑफ डिलेमा शुड वी एग्री टू बॉडी और टू माइंड। अगर आपका बॉडी और माइंड सिंक में है तो उन दोनों की आवाज अलग नहीं होगी, इसलिए बॉडी और माइंड को सिंक में लाने के लिए ये एक्टिविटीज करिए। वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली वी शुड ऑलवेज थिंक कि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं, और अगर ये अलग सोच रहे हैं तो पहला पॉइंट है कि आप इन दोनों को एक करिए, बॉडी माइंड बैलेंसिंग करिए, जैसा मैम ने अभी बताए इतने सारे टिप्स, वी शुड फॉलो दीज एंड गेट द राइट बॉडी माइंड बैलेंसिंग। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सोचते हैं कि सिर्फ एक हेड है, मतलब मैं देखूं तो हम सब कैरिकेचर्स को, आप जानते हैं कैरिकेचर्स का सिर्फ फेस दिखता है, सिर्फ नीचे 2 छोटे छोटे पैर और हाथ, तो मैं देखूं तो हम सब एक कैरिकेचर्स का झुंड है, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर सो मच फुल इन हेड। अभी जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पैर में कुछ चुभेगा तो आपका पूरा ध्यान वहीं जाएगा, तभी आपको लगेगा कि मेरा माइंड वहां पे है, क्योंकि वो माइंड पहले भी वहां पे था, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जब कहीं पे कुछ इमरजेंसी कॉल आया, मतलब हमारी यह स्थिति हो गई कि काम की कंडीशन में भी और बॉडी में भी जब कहीं इमरजेंसी होती है तभी हम जागते हैं।
तो इसीलिए अगर हम हमेशा अवेयर रहें, जगे हुए रहें, तो कभी भी हमारे ऊपर रेड लाइट और अलार्म नहीं बजेगा. विल ऑलवेज बी इन द राइट टाइम एंड इन राइट प्लेस. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैम. मैम आप कुछ आयुर्वेदा या एंशिएंट विजडम से भी कुछ रिलेट करना चाह रहे थे इस टॉपिक को. डू वी हैव टू स्पीक ऑन दैट? डू यू वांट टू स्पीक ऑन दैट? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एंशिएंट विजडम में मतलब आज के टाइम में जो बॉडी और माइंड का ये जो बड़ा सा एक गैप आ गया है, जो एक chasm आ गया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन नहीं कहूंगी मैं, दैट वुड बी अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, पर ये मैं ये कहूंगी कि आजकल के टाइम में जो हमारी एक कंज्यूमरिज्म है या फिर भी जो बाहर की दौड़ है, उसकी वजह से माइंड कहीं बहुत पीछे छूट गया. और पहले के टाइम में जब भी हेल्थ की बात आती थी, तो मतलब जो मेन वर्ड है स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब ही है स्व में स्थित. और स्व में स्थित कौन हो सकता है? जो सेल्फ लव, जिसमें सेल्फ लव है, जिसमें अवेयरनेस है कि मैं हर टाइम अवेयर हूँ, मेरी कॉन्शियस ब्रीदिंग है, मेरा पोस्चर कॉन्शियस है. आप मानेंगे नहीं, केवल रॉन्ग पोस्चर की वजह से कितनी ज्यादा डिजीज होती है, मस्कुलोस्केलेटल डिजेनरेटिव डिजीजेस. लेकिन उनका रीजन यही है कि हम अपने पोस्चर के लिए अवेयर तभी होंगे ना जब हम खुद में हैं. हम खुद में नहीं हैं, हम किसी के आइलैंड, किसी की बहुत अच्छी हॉलीडे पिक पे हैं, हम किसी और के प्रमोशन पे हैं, हम पड़ोसी की नई गाड़ी पे हैं, हम खुद में है ही नहीं. तो जब तक हम खुद में रहना नहीं सीख सकते, तब तक हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. इसीलिए एशियन विजडम का मैं हाँ मैम, तो हम बात कर रहे थे एंशिएंट और आयुर्वेदा की कि कैसे ये रिलेटेड है, एंड स्वास्थ्य आप मतलब बता रहे थे. हाँ जी. ये कहना चाहूंगी कि कुछ हर्ब्स हैं, फॉर एग्जांपल उसको मैं कहूंगी कि वो एक ब्रेन वाली बात है, जैसे कि जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, इस तरह की कुछ चीजें जरूर हैं जिनको अगर हम एक देखना चाहें मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनको आप प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं अपनी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन देख के, तो डेफिनेटली वो आपकी ब्रेन का फॉग हटाने में, कॉन्सेंट्रेशन हटाने बढ़ाने में. इवन नारियल, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि नारियल जो है वो आकाश से जुड़ा है, और वैसे ही हमारे बॉडी में सबसे ऊपर हमारा हेड है, हमारा ब्रेन है, वैसे ही नेचर में नारियल के पेड़ को सबसे ऊंचा माना जाता है. तो वो धरती के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाके, मतलब इट इज सो स्ट्रॉन्ग. और नारियल को कहा जाता है श्रीफल. तो सारे डिफरेंट अच्छे अच्छे कामों में, फेस्टिवल्स में, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे हमेशा नारियल को लेते हैं श्रीफल बोल के. और अब देखिए मजे की बात डॉक्टर सुदीप्ति की, बहुत सालों पहले अगर आप बात करें कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे नारियल के पेड़ नहीं होते, वहां भी किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन से जोड़ के नारियल को लाया जाता था कि नहीं, वहां पे भी आपको एक छोटी सी दुकान पे नारियल मिल जाएगा, जो शायद साउथ इंडिया से आया होगा. लेकिन उसको क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो बॉडी और माइंड के लिए इतना अच्छा है. तो आयुर्वेद में, हमारे ट्रेडिशंस में और हमारे एंसेस्टर्स ने हर चीज को हमें एक बना के दिया, लेकिन अगर हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, उसको समझे बिना, तो कई बार हम गलती कर सकते हैं. इसीलिए अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन फेथ जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जो आपको बंद आंखों से भी चलने का रास्ता देती है. इसीलिए ये जो चीजें हैं आयुर्वेद में, फूड में, कि वो आपकी चेतना को जागृत करते हैं. और मैं कहूंगी कि जो सात्विक फूड्स हैं, मतलब विच आर प्योर एंड फ्रेश एंड बैलेंस्ड, वो आपको अपनी जो कंसाइंस है उसके करीब रखते हैं, आपको अपनी वाइटैलिटी के करीब रखते हैं. और जब आप अपनी वाइटैलिटी में 100% होते हो, आप हर चीज जो करना चाहते हो वो कर पाते हो, तो आप अच्छा फील करते हो. इसलिए बॉडी का भी ध्यान रखना माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एफिशिएंट फील करते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं. हमें अगर ऐसा लगे कि हम हर चीज में डिपेंडेंट हैं, हम थोड़ा सा करते थक जाते हैं. इसीलिए हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, इनफैक्ट हमारी जो पर्सनल केयर की चीजें, कि हम जो चीजें अपने बॉडी पे यूज कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर ईटिंग, उनका हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इफेक्ट आ रहा है. तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है. हम लाइफ को ऐसे फ्रैगमेंटेड फॉर्म में जब देखते हैं तभी प्रॉब्लम आती है. आप ये समझिए कि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है कि आपने कोई चीज 6 साल पहले खाई और 6 साल बाद, क्योंकि आपने अपने बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई नहीं किया, वो किस डिजीज में मैनिफेस्ट होगा, ये हम लोग अच्छी साइंस या टेक्नोलॉजी से भी नहीं समझ सकते. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेली बेसिस पे अपने बॉडी को और माइंड को डिटॉक्स करें. और उसका एक तरीका, जैसे मैंने बताया, कि सोने से पहले हम कुछ टाइम खुद को दें, अपनी जर्नलिंग करें. हम ये हर दिन ये देखें पूरे दिन को, रात को, कि मैंने ये किया, इसको मैं ऐसे कर सकता था या मैं ऐसे कर सकती थी. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना हम एक ऐसी उसमें है कि बस भीड़ के पीछे चल रहे हैं, और भीड़ का निकलती है एग्जिट पे निकलती है. तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम लाइफ की रेस से एग्जिट हो जाएंगे, एंड देन व्हाट वी विल फेस इज डिप्रेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने से पहले खुद का पूरा दिन को एक बार वापस से हैविंग अ क्लोज वॉच ऑन इट, जिससे कि आप ये समझ सकें कि अगले दिन मैं इस चीज को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, रिलेशनशिप्स में
काम में, अपनी हेल्थ को लेकर कि मैं एक बात बताऊंगी आपको, योगिक प्रैक्टिसेस में 6 मंथ्स पहले ये पता चल जाता था कि 6 मंथ्स बाद या तो ये डिजीज आएगी या फिर डेथ तक का, क्योंकि बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी माइंड का जो आपका ब्रिज अगर इंटैक्ट है तो आपको बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स पता चलेंगे, अदरवाइज हमें वही चीज बिल्कुल सामने आके भी हम उसको देख या सेंस नहीं कर पाएंगे। तो होता ये था कि बॉडी के हर पार्ट में एक वाइटैलिटी होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, इनफैक्ट सुना भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सूरज की रोशनी से या हवा से सालों साल जिंदा रह लेते हैं बिना खाना और पानी के, क्योंकि वो अपने अंदर जो प्राण तत्व है, जो वाइटैलिटी है, उसको इतना इनहेंस कर लेते हैं। तो हम सबके अंदर जो एक इनटैंजिबल वाइटल फोर्स है उसको स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको स्ट्रांग रखने के लिए प्रेजेंट में रहना, और प्रेजेंट में रहने के लिए अपनी हर चीज से जुड़ना है। ऐसे नहीं कि नहीं परसों मेरा ये है तो बस मैं तब पूरा ध्यान उसी पे है। आप अभी भी हो तो अभी को भी एनरिच करो, अभी को जियो, चाहे कोरोना है या, क्योंकि ये तो चीजें चलती रहेंगी। आज कोई डिजीज है, कल कोई और आएगी, क्योंकि हम लोगों ने क्लाइमेट का जो हाल किया है पिछले 40 सालों में, उसके रिपोर्केशंस तो हमें और जनरेशन को झेलने ही पड़ेंगे। वी कांट एस्केप नाउ। तो ये बात तो है कि आज हम कोविड है, हम सोचे कि नहीं चलो कोविड चला जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा, देन समथिंग एल्स में कम। तो द ओनली थिंग यू हैव, द ओनली टेरिटरी ऑफ यू दैट यू हैव कंट्रोल ऑन इज योर बॉडी एंड योर माइंड, विच इज दिस मच कि आपको इन दो कानों के बीच में ये पूरी दुनिया आपकी यहाँ पे चलती है। Right. Very important things you have told and very insightful. It was really wonderful to know all these things. मतलब हम कैसे उनको डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा एफर्ट नहीं करना है, आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो। आप अपना फोन का डिजिटल वेलबींग चेक करो। डिजिटल वेलबींग विल इंडिकेट आपने कितना टाइम कौन सी ऐप पे लगाया है, दैट विल इंडिकेट आपने फोन कितना यूज किया है। सो दैट इज द मेन थिंग जो सोशल मीडिया और इन सब से हमें दूर रखेगी। सेकेंडली, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर, एंड सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को समझना is, you know, how to self love, I believe, is how you take your power back. So give Yes. yourself some care and attention that you give to others, and watch yourself bloom. जैसे हम जब कोई सीडलिंग लगाते हैं तो मेरे को लगता है हम अगर कोई खुद से कभी लगाओ तो आप देखोगे रोज आप उसको पानी देते हो, रोज आप उसको देखते हो कब निकलेगा, एंड यू कैन फील दैट जॉय, यू नो, कि आज इतना हुआ। तो वैसे ही मुझे लगता है हम खुद की केयर करें एंड खुद को ब्लूम होते हुए देखें, दैट विल गिव यू द अल्टीमेट जॉय, द अल्टीमेट हैप्पीनेस, आई फील। वेरी So I think with this, because you have the another session also, अभी आज आपने बताया था कि आपका एक और सेशन भी है, तो I think हाँ, बट एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं इफ नीडेड। अभी कुछ एक दो किसी ने पूछा था, मैम व्हाई डज इट हैपन, वी नो ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग बट वी आर नॉट एबल टू डू द सेम इन क्रिटिकल सिचुएशंस। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि क्यों हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं इम्पोर्टेंट टाइम पे, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है दैट इज लाइक, हमारा जो कॉन्शियस है वो दैट इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन जो सबसे बड़ा मास है, जो सबसे बड़ा चंक है हमारे माइंड का, वो सबकॉन्शियस है। तो जो सबकॉन्शियस का पैटर्न है वो केवल पढ़ने से चेंज नहीं हो सकता। सबकॉन्शियस का जो पैटर्न है वो बहुत डीप क्लेंजिंग की बात है, जहाँ पे हम ये जो बात करते हैं कि कंटिन्यूस रिपीटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस या फिर बॉडी और माइंड की जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये उनके बिना आप कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लीजिए, आप कितने भी है ना पोस्टर्स लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस पे मूव नहीं करेंगे तो जब भी इमरजेंसी या क्राइसिस आएगा तो वही बिहेवियर पैटर्न क्रॉप अप होगा, बिकॉज सबकॉन्शियस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इससे, कॉन्शियस से। और हम कॉन्शियस को पूरा माइंड समझते हैं, हम सोचते हैं कि मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, अब मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जैसे वो अरे मैंने पिछली बार सोचा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उस 19 है, उस 10 को हमेशा ओवर पावर करना ही है। तो आप उस 90 में से जितने पार्ट को जागृत करते जाएंगे, उसको अलाइव करते जाएंगे, और उसको अलाइव करने का तरीका यही है जो कि मैंने बताया। वो जैसे जैसे आते जाएंगे बाहर, वैसे वैसे आपकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज अभी आपने सारी पावर उस टेरिबल मास्टर को दे रखी है। माइंड इज अ टेरिबल मास्टर एंड अ वंडरफुल स्लेव। तो उसको अभी जो 90% है वो आपका मास्टर है, केवल 10% ही आपके कंट्रोल में है। तो इसीलिए आपको अपनी पावर बैक लेनी है यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, सेल्फ लव। और अगर मैं बोलूँ मेडिटेशन फिर भी कोई करना चाहता है तो जैसे रागास के अलावा सिंपलेस्ट मेडिटेशन टेक्निक इज टू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अगर आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग यूनिवर्सल है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर
एक फॉर्मेट, एक वो है, कोई आकृति है या कोई साउंड है। ब्रीदिंग ऐसी जो यूनिवर्सल है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो कि टैंजिबल होते हुए हमें इनटैंजिबल माइंड तक ले जाती है। हम सोचते हैं माइंड को हम कैसे पकड़ें, कैसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर आपको गुस्सा है, चाहे मुझे गुस्सा है, चाहे जापान में बैठे हुए किसी 70 साल के आदमी को गुस्सा है, हम सबके गुस्सा करने में एक चीज कॉमन होगी, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सेम तरीके से चेंज होगा। अगर हम डरेंगे सेम तरीके से चेंज होगा, अगर हम शिवरिंग करेंगे, अगर हम एंग्शियस होंगे तो सेम तरीके से। यानी कि ब्रीदिंग एक कॉन्शियस, एक यूनिवर्सल टूल है माइंड तक पहुंचने का। इसलिए जिसको भी मेडिटेशन में प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक काम करे, सिर्फ सीधे बैठ जाए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखे और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करे, मतलब आंखों से नहीं, उसको फील करे कि अब ब्रीद इन हुआ, अब ब्रीद इन जा रहा है। तो इतना जो पार्ट है आपको फील होगा, बस आ रहा है जा रहा है। तो आप, एक चीज तो ये कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरी चीज, ये हर टाइम प्रेजेंट में है। हमें ये नहीं है कि पुरानी सांस चली गई हम उसके बारे में सोच रहे हैं या कब आएगी। आपके पास हर टाइम वो प्रेजेंट में है, तो आपको प्रेजेंट में रहने की हो गई। बॉडी और माइंड का बीच का जो सबसे अच्छा ब्रिज है वो ब्रीदिंग है, बॉडी माइंड कनेक्शन हो गया। और तीसरा, ये आपको हमेशा आपका जो भी करंट स्टेट ऑफ माइंड है उससे आपको रिलैक्स करेगा और धीरे धीरे आपको प्योरिफिकेशन की तरफ ले जाएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट मोस्ट यूनिवर्सल टूल जस्ट टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग विदाउट एनी एक्सरसाइज। कि हम उसको ये ना करें कि हम जोर जबरदस्ती करके गहरा या ऐसा कुछ सांस ले रहे हैं, जो नेचुरल है, क्योंकि हमें जो सच है उसके साथ जुड़ना है। तो जो रियलिस्टिक, जो यथार्थ में जैसा सांस आ रहा है उसको आप जानते रहें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप सिंपलेस्ट टेक्निक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता है मेडिटेशन कैसे करना है, तो अपन सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। आई थिंक इफ देयर आर नो एक क्वेश्चंस, तो आई थिंक देयर no questions now, and thank you guys for they love the session, so they are writing. And thank you so much I'm so Dr. happy. Shreya, seriously, because हमने इतने short notice पे आपको बोला and then still you were able to take this session, and it was थोड़ा starting में रहा glitch, and for that we are sorry, but then it was No, really that's very perfectly fine. insightful, wonderful session. And at the end I would just like to say to all the audience that it's okay to make mistakes, it's okay to have bad days, it's okay to be less than perfect, it's okay to do what's best for you, it's okay to be yourself. Mental health is not a destination, it's a process. It's about how you drive, not where you are going. So with these बिल्कुल। words, और मैं भी कुछ कहना चाहूंगी लास्ट में कि अगर आप ये सोचें कि आपकी लाइफ एक स्टोरी है, तो आप ये सोचिए अगर आप कोई मूवी देखने जाएं, आप कोई स्टोरी पढ़ें और उसमें ऐसी स्टोरी हो कि कोई राजकुमार पैदा हुआ, उसको एकदम सिल्वर स्पून में सब कुछ मिला, वो बड़ा हुआ, गुरुकुल गया, उसने 10 राज्यों को जीता, उसको एक सुंदर सी राजकुमारी मिली और बस खत्म। तो आपको इसमें इंटरेस्ट रहेगा, या फिर कि एक गरीब के घर एक बच्चा पैदा हुआ, उसको इतनी तकलीफ हुई, उसने अपने लिए सिल्वर स्पून खुद जुगाड़ी अपनी मेहनत से, उसने मेहनत करके ऐसी जगह लिया और उसने अपनी बहादुरी से ऐसे किया, और उसके बाद में आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा, या वो जो एकदम प्लेन मोनोटोनस और हैप्पी थी। इसी तरह यू, एवरीबडी ऑफ यू जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईच वन ऑफ यू इज अ हीरो विच द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग एज एन ऑडियंस। तो अगर आपकी कोई स्टोरी लिखे या देखे, तो हाउ डू यू वांट टू बी सीन एज, आप यू शुड बी सीन एज अ हीरो। तो लेकिन उसके लिए हमें ये सोचना बंद करना होगा कि बस हमारी लाइफ ऐसे चले। तो इसलिए अगर आपके पास जो भी है, दैट्स अ पार्ट, कि अगर आपकी किसी दिन बायोग्राफी लिखी जाए तो वो इतनी अच्छी हो कि सुनने वाले को और देखने वाले को मजा आ जाए। तो इसलिए जो भी आपके सामने है वो आपकी सिर्फ एवोल्यूशन की प्रोसेस है। अगर आप उसको एवोल्यूशन के अलावा और कुछ भी समझ रहे हैं तो तुरंत उस थॉट को दिमाग से निकाल दीजिए एंड टेक इट एज अमेजिंग चांस कि हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है और हमारे पास इस समय आंखें हैं, कान है, नाक है, कि हम परफेक्टली एकदम जो करना चाहे कर सकते हैं। और इन सब चीजों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम लोग साइंस से हैं, हम आपको ये कह सकते हैं कि दुनिया में एक भी लैब ऐसी नहीं है जो गेहूं से लेकर ब्लड बना दे, जो एक केले से लेकर न्यूरॉन बना दे, एंड वी हैव दिस अमेजिंग मशीनरी विद अस। तो हम इसको वैल्यू करना सीखें कि आपके पास जो है इट इज मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो बी वेरी हैप्पी, बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड एक मैं शेर कहना चाहूंगी कि पंख मेरे ए वक्त तूने जब भी जलाए हैं, पंख मेरे ए वक्त तूने जब भी जलाए हैं, हौसले मेरे उड़ने के और भी बढ़ाए हैं। तूफान ने जब भी किया रुख मेरी कश्ती की तरफ, हमने अपने पतवार और तेजी से चलाए हैं। और दर्द ने जब भी किया रुख मेरे सीने की तरफ, खुदा गवाह है कि हम जी भर के मुस्कुराए हैं।
क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे एवोल्यूशन का पार्ट है. Wow, very good, ma'am. Seriously, this was highly motivating actually to feel yourself and to, to feel the importance of your body and the examples that you have shared. Yes, definitely. जो हम खाते हैं वो कैसे convert हो जाता है, and being the biotechnology students all here, we can completely understand this beautiful machinery that we are, blessed with. Actually we have not, we have somehow हम भूल गए हैं इसको importance देना. So we today I think you have made all of us realize the importance of our body, the importance of our mind, and in a very beautiful manner the body mind balancing. That's really appreciative, and we thank you from the bottom of our heart for being here with to take this session with Dr. Bilal Institute of Biotechnology, and on behalf of everybody here, really thank you, ma'am, for all the efforts. Thank you so much. थैंक यू. और हमारा ये जो इनिशिएटिव है दी हैप्पी कॉलर, इसका सोल पर्पस ही यही है कि लाइफ में आज हमारे पास जॉब्स हैं, डिग्रीज हैं, हमारे पास अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन हमारे पास खुश रहने की वो ताकत नहीं है. और हमें अगर खुश रहने की वो ताकत मिल जाए तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है. आप सोचो, अगर एक बच्चा थर्ड आया, एक बच्चा फर्स्ट है, लेकिन थर्ड वाला नाच रहा है, पागलों की तरफ खुशियां मना रहा है, तो हर इंसान उसी को देखेगा. तो खुश रहने की जो ताकत है उसकी है कि वो फर्स्ट वाला भी फीका पड़ जाएगा. इसलिए आप सबके पास एक खुश रहने की ताकत हो. इसी इनिशिएटिव के, इसी थॉट के साथ हमने दी हैप्पी कॉलर शुरू किया, जिसमें हम लोग हार्मनी, हैप्पीनेस और लोग जहां भी हैं उसको अपनी लाइफ की कॉलिंग के साथ अलाइन कर सकें. तो ह्यूमन रिसोर्सेज और बॉडी माइंड बैलेंसिंग, काउंसलिंग, ये सारे जो है हमारे हैप्पी कॉलर के पार्ट है. तो एवरीबडी इज वेलकम टू कनेक्ट विद अस एंड मेक दिस अ वंडरफुल association in the long run. Yes, and definitely I would also like to mention here that ma'am is a PhD in nanobiotechnology. So basically she is also the biotechnologist, and in spite of all that her research, she somehow found the need कि लोगों को खुश रखने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया. That's so wonderful, ma'am, कि आपने अपनी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई को इंटीग्रेट किया एक और चीज के लिए, and that's how you make people happy, because ultimately happiness is everything. आप कितनी बड़ी से बड़ी डिग्रीज भी ले लोगे, अगर आप हैप्पी नहीं हो, there is no use. So your this initiative, the happy caller, is seriously great, and you all can visit website. There are so much information, and उसके बाद भी if there is any question, if there is anything you want to know, I think ma'am is available to answer your questions through our website, and it's really great, ma'am. Thank you so much. Wishing you all a very happy life ahead, and may all of you be able to wear that happy collar. कि हम blue collar, white collar की बात करते हैं, but happy collar सबसे important है. चाहे और कोई collar हो ना हो आपके लाइफ में, but ये happiness की जो आपके चेहरे पे हमेशा ऐसे ही रहे, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए. Be safe and be very happy. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Definitely, ma'am. Thank you. Okay.